Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. How are you all? Fine, sir. So today, we shall start with the new chapter, which is states of matter. Important and also easy also. All of you know there are three states of matter. What are they called as? Solid, liquid, gas. Solid, liquid, and gas. Besides this, you might have studied about plasma and Bohr
Einstein condensate also. In this chapter, we will mainly discuss about the gaseous state, which is the most important here. We have gas laws, we have kinetic molecular theory, then we have deviation from ideal gas behavior, real gas equation and its implications. All that is a part of this chapter. And liquid state is also there, but liquid state we have very few topics only, like vapor pressure, then surface tension, then viscosity. Three topics are there related to that. Some questions can be asked. बाकी सॉलिड स्टेट जो है आपका 12th क्लास में डिस्कस करते हैं. अगेन दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सॉलिड स्टेट अलग से हम 12th में डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली बिफोर आई डिस्कस states, you know, there are, if I ask you in terms of intermolecular forces, which of the three states have strongest intermolecular forces? Solid. The solids. Solids have the strongest intermolecular forces. Liquids have lesser compared to solids, and gases have least intermolecular forces. So my topic of discussion is what are the types of intermolecular forces, or also we call them as van der Waals forces. Magnitude of van der Waals forces or intermolecular forces is strongest in case of solids, minimal in case of gaseous state. But what do you mean by these van der Waals forces? G, any question? No, sir. देखिए van der Waals forces जो है mainly three types we have. One is London forces. Second is dipole-dipole forces. And third category we have is dipole, induced dipole forces. First of all, what are London forces? So basically, if I ask you what are polar or non-polar molecules, can you give some example of polar molecule? Polar molecules, can you give some example? We have discussed in chemical bonding also dipole moment molecules which have a permanent dipole. Sir, H2O. H2O is polar, Sir, NO. HCl is polar, NO is polar. Nitrogen is polar or non-polar? Non-polar. Oxygen, chlorine, when basically same type of atoms are attached. H2S, carbon dioxide is non-polar again, although atoms have different electronegativity, but because of linear shape, यहाँ पर जो dipoles हैं आपने डिस्कस किया था पीछे, dipoles they cancel out each other, and that's the reason these are non-polar molecules. अब देखिए यहाँ पर जो dipole forces है बेसिकली polar molecules के केस में होगा. We will discuss it. London forces, these are in case of non-polar molecules. And dipole induced dipole forces का मतलब हुआ these are between polar and non-polar molecules. I will explain you with examples. But first of all, देखिए सर polar का मतलब क्या है? जैसे कोई भी polar molecule है, हम कहते हैं कि सर आपके पास एक एंड पे चार्ज पॉजिटिव है
और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे HCl है, अगर मैं लेता हूँ तो Cl is more electronegative, will acquire a partial negative charge, while hydrogen will acquire a partial positive charge. In case of non-polar molecule, electron cloud is symmetrical. मतलब ये आपका न्यूक्लियस है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है. These are basically non-polar molecules. London forces, as I said, it is for non-polar molecules. Like noble gases, you have helium, neon, argon. ये तो monoatomic gases हैं. Then you have molecules like nitrogen, oxygen, etc. अब बेसिकली इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स का ओरिजिन क्या है या व्हाट इज द रीजन फॉर इट. देखिए ये आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. दिस इज अनदर मॉलिक्यूल विच इज सिमेट्रिकल. अब बेसिकली क्या है, जैसे हम कहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स और ऑर्बिटल्स. अब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इट सो हैपेंस दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही एंड पे शिफ्ट हो जाए और न्यूक्लियस दूसरे एंड पे शिफ्ट हो जाए. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन था, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे माइग्रेट हो गए या शिफ्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे शिफ्ट हो गए. तो यहाँ पर अपने पास जो पॉजिटिव नेगेटिव, एक तरह से वी कैन से एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हुआ. इंस्टेंटेनियस डाइपोल से मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए बना, थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए बना इंस्टेंट डाइपोल क्रिएट हुआ. लेकिन जब ये डाइपोल क्रिएट हुआ, ये क्या करेगा, जो एडजॉइनिंग जो मॉलिक्यूल है उसमें ये डाइपोल क्रिएट कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव एंड है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच करेगा और पॉजिटिव दूसरे एंड पे शिफ्ट हो जाएगा. so that will create a dipole in the adjacent molecule. सर जी सर एक बार दोबारा समझा दो. दोबारा से समझाऊंगा सर. देखिए अपने पास जो एक ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म है, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं कि पर्टिकुलर मोमेंट पे पर्टिकुलर टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं. ऐसा होता है कि मूव करते करते एक ही पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन्स एक एंड पे माइग्रेट हो गए या एक एंड पे शिफ्ट हो गए. तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे होने का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए एक डाइपोल क्रिएट हुआ, विच इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल. टेम्परेरी डाइपोल है, बट ये डाइपोल दूसरे मॉलिक्यूल में भी डाइपोल क्रिएट कर देगा. तो इस तरह से डाइपोल इंस्टेंटेनियस जनरेट होते चले जाएंगे और ये जो डाइपोल बने ये एक दूसरे को, पॉजिटिव नेगेटिव एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. एंड दैट इज द रीजन मॉलिक्यूल्स दे आर अट्रैक्टेड बाय these type of forces. These are called as London forces. Also these are called as dispersion forces. सर जहाँ पे आपने माइनस साइन बना रखा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, सर लेफ्ट में सर दूसरे हाँ जी. वाले, सर आपने वहाँ पे मतलब सारे इलेक्ट्रॉन थे जो रिवॉल्व करते हुए एक इंस्टेंट पे हाँ, लेफ्ट एक में आ गए. पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हुआ. वी कॉल इट एज ए इंस्टेंट डाइपोल. और ये जो डाइपोल क्रिएट हुआ ये ज्वाइनिंग मॉलिक्यूल में भी क्रिएट. ओके सर. These type of forces are called as dispersion forces. It is due to instantaneous dipole which arise due to shifting of electron density to one side.
Secondly, the interaction energy. जैसे आपको मालूम है कूलम फोर्स जो होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है अपोजिट चार्जेस के बीच में, वो हम कहते हैं ना सर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, आर के इनवर्स स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल होती है ना। यहाँ पर इंटरेक्शन एनर्जी इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर रेज़ टू द पावर 6। आर क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। R here is intermolecular distance, and these are weakest forces of attraction. ये सबसे weakest forces है तीनों में से, लंदन forces, dipole forces और dipole induced dipole forces. So these are what you call as London forces. Reason is instantaneous dipole. एक particular instant पे dipole generate होगा, dipole create होगा, वो फिर adjoining molecule में dipole create करेगा और इसी तरह से dipole generate होते होते वो आपस में attracted रहेंगे और these type of forces are called as dispersion forces, also called as London forces, on the name of scientist. ये लंदन जो है एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये फोर्सेस को एक्सप्लेन किया। गॉट इट? सर इंटरेक्शन एनर्जी क्या होता था? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बेसिकली। अच्छा, ओके। जैसे हम कूलम फोर्स को कहते हैं ना, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यस सर। ये पढ़ा है ना आपने कूलम्स लॉ? यस सर। सेम वे यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो R की 6 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके सर। ओके जी। नाउ सेकेंड इज योर dipole forces. This is for molecules having a permanent dipole. Molecules which have a permanent dipole, these are attracted by dipole forces. Like example is HCl. Like you have H2O. H2O have rather hydrogen bonding, but SO2 is polar. अब यहाँ पर होगा क्या basically? Let's say HCl. What is charge over chlorine? माइनस सर। Partial negative. तो ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है क्लोरीन के ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, H पे चार्ज कैसा होगा? पार्शियल पॉजिटिव। और आपके पास ये जो डाइपोल है वो परमानेंट है। अब मान लो आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो व्हाट विल बी देयर? दिस विल हैव अट्रैक्शन और रिपल्शन? अट्रैक्शन। Attraction. So molecules which have a permanent dipole, they show these type of interaction. Secondly, the opposite dipole attract each other. And these forces are called dipole forces. Thirdly,
these are stronger than London forces, but weaker than iron-iron interaction. आयन-आयन इंटरेक्शन का मतलब लाइक NaCl. अब आप देखिए यहाँ पर तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पर आपका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा या आयन आयन इंटरेक्शन ज्यादा होगा? बताइए. सर आयन आयन इंट्रैक्शन ज्यादा होगा. आयन आयन इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इसलिए मैंने लिखा दीज आर वीकर देन आयन आयन इंटरेक्शन बट स्ट्रॉन्गर देन द लंडन फोर्सेस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज interaction energy or forces of attraction. These are proportional to 1 upon r raised to the power 3 in stationary state. Stationary state means when molecules are at rest, and proportional to 1 upon r raised to the power 6 in rotatory state. मतलब when molecules are in a state of motion. जब मॉलिक्यूल्स रोटेशन कर रहे हैं, रोटेटरी मोशन में है, तो आपका जो पावर है वो इट इज रिलेटेड टू r raised to the power 6 इनवर्सली. प्रीवियस केस में भी हमने 1 upon r raised to the power 6 पढ़ा था, और एग्जांपल्स ऑलरेडी आई हैव रिटन HCl, SO2 etc. सर थर्ड पॉइंट दोबारा समझा सकते हो? लंदन फोर्सेस में तो इंस्टेंट डायपोल क्रिएट हुआ ना. यस सर. यहाँ पर डायपोल ऑलरेडी परमानेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज देयर, तो उस वजह से चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा rather compared to in case of London forces. Yes or no? यस सर. चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डायपोल फोर्सेस. सर आयन आयन से वो कम क्यों उसके अट्रैक्शन? उसमें तो कंप्लीट ट्रांसफर है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कंप्लीट है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, किसमें होगी? अपोजिटली चार्ज आयंस में होगी ना. यस सर. जी. सर रोटेटरी स्टेट का मतलब क्या है? रोटेशन में हो, रोटेशनरी मोशन जो है, मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे ना होके, स्टेशनरी स्टेट में ना होके रोटेशन में है, रोटेटरी मोशन में, रोटेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल. सिंपल वर्ड्स में इन स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली. रेस्ट पे ना होके वो मोशन में है, तब ये r raised to the power 6 पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज डाइपोल induced dipole forces. अब इसका क्या मतलब हुआ? These exist between polar and non-polar molecule. भाई आपके पास HCl है और आपने CO2 मॉलिक्यूल लिया. CO2 पोलर तो नहीं है? CO2 is polar or non-polar? Vijaya, CO2 is polar or non-polar? Non-polar. It's non-polar. Already I have told you. अब देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, राइट, और ये नॉन पोलर है, पॉजिटिव इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफॉर्म. अब होगा क्या? व्हेन दिस विल अप्रोच नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, आपने नेगेटिव ये पॉजिटिव लिया. नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब इसके क्लोज आएगा या व्हेन दीज टू मॉलिक्यूल विल अप्रोच ईच अदर,
ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। होगा नहीं होगा ऐसे ही? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। एज ए रिजल्ट ये तो डाइपोल परमानेंट था, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था इसमें क्या हो गया? induced dipole. Dipole is induced in the non-polar molecule, right? सर मतलब Permanent dipole means electronegativity difference is there. आपने कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ये पोलर जब नजदीक आएगा इसके, तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा नेगेटिव एंड, और नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो जो पहले नॉन पोलर था वो भी कैसा बिहेव करेगा? पोलर। पोलर। लेकिन व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज ए इंड्यूस्ड डाइपोल। मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस हुआ when we approach a polar molecule and a non-polar molecule. तो बेसिकली यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है, एंड हेयर इंटरेक्शन एनर्जी again is proportional to 1 upon r raised to the power 6. जितना मॉलिक्यूल्स को हम क्लोज लाएंगे उतना इंटरेक्शन एनर्जी बढ़ेगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये आपका है सर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। और एक डिस्टेंस के बाद बियॉन्ड अगर हम और भी ज्यादा क्लोज लाएंगे तो आपके पास जो फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव की बजाय रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको याद हो, हमने ये डिस्कस किया था केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में कि ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जब दो एटम्स को हम क्लोज लाते हैं एक पॉइंट पे ये मिनिमा अचीव करता है, दिस इज द मिनिमा। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? आज आप में कुछ न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं बीच में, या आई हैव नो इंफॉर्मेशन? जी सर, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ? Can anyone answer what is the meaning of minimum potential energy? Am I audible? आवाज आ रही है सर? Yes, sir. बताइए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है? अट्रैक्टिव फोर्स आर मैक्सिमम हेयर। अगर मैं इससे क्लोज लाऊंगा तो बजाय अट्रैक्टिव फोर्सेस के रिपल्सिव फोर्सेस दे स्टार्ट टू डोमिनेट। यस और नो?
ये आपको याद होगा केमिकल बॉन्ड में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन एटम के केस में। डू यू रिमेम्बर दिस और नो? बीबीटी बताया था आपको। Yes, sir. So here minima means attractive forces have maximum value या attractive forces are maximum here. इससे अगर मैं क्लोजर लाऊंगा एटम्स को तो रिपल्सिव फोर्सेस दे स्टार्ट टू डोमिनेट। सेम इज द केस विद डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और रैंडम फोर्सेस। जहां भी हम मॉलिक्यूल्स को एक डिस्टेंस से ज्यादा क्लोज लाएंगे रिपल्सिव फोर्सेस दे स्टार्ट टू डोमिनेट। So three types of forces we have discussed: London forces, dipole forces, and dipole induced dipole forces. Hydrogen bonding already I have discussed with you. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सर जी। सर आप पोटेंशियल एनर्जी वाला चीज दोबारा समझ सकते हो? कौन सा वाला? पोटेंशियल वाला? एनर्जी। यस सर। ये तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था ना यार, कि ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है पहले अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड था, ये बी के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड था। जब एटम एक दूसरे के क्लोज लाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ए के न्यूक्लियस से ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो बी के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा। तो दीज आर न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और रिपल्सिव फोर्सेस होंगी बिटवीन न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। बताया था ना ये हमने। यस सर। हीलियम 2 के केस में ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो था वो बढ़ रहा था इस टाइप से। इसका मतलब क्या बताया था, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस की बजाय रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती थी, और हम कहते हैं कि हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो बीबीटी प्रीवियस चैप्टर का पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने डिस्कस किया। यहाँ मेरा समझाने का मतलब ये है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस एक डिस्टेंस तक ही रहती है, उससे अगर मैं ज़्यादा क्लोज लाऊंगा तो आपकी जो फोर्सेस हैं वो बजाय अट्रैक्टिव फोर्सेस के रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होंगी। क्लियर? यस सर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या तीसरा एलिमेंट कौन सा था, नाइट्रोजन से अटैच होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कहते हैं, लाइक अमोनिया, HF, H2O, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक। और इसको हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। और दूसरा टाइप क्या बोला था, सात्विक? सर इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामॉलिक्यूलर ये हम पहले ही केमिकल बॉन्डिंग के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो मेनली जो नया पार्ट है वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, पोलर नॉन पोलर के बीच में। सर जी सर एक चीज पूछनी थी सर, लंदन फोर्स। हाँ हाँ पूछो। सर आपने कहा कि सर जो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है सर, सर उसमें फिर वो एक इंस्टेंट के लिए नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है और उससे इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हो जाता है। जी सर तो अगर वो यूनिफॉर्म होता है सर तो वो नॉन यूनिफॉर्म कैसा, मतलब एक इंस्टेंट के लिए वो क्यों नॉन यूनिफॉर्म होता है? तो यूनिफॉर्म को बेटा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं ना, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। यस सर। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मूव करते करते इलेक्ट्रॉन सारे एक ही साइड शिफ्ट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड हो जाएगा। ओके सर। दैट्स द कॉन्सेप्ट बेसिकली। अब देखिए सर, जो अपने पास गैसियस स्टेट है, it is defined by temperature, pressure and amount. Pressure, temperature, amount
एंड लास्टली वॉल्यूम। जो गैस लॉज हैं हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं सर, हम डिस्कस करेंगे आपसे। ये जो चार मैंने पैरामीटर्स बताए थे, प्रेशर, टेम्परेचर, अमाउंट एंड वॉल्यूम। अमाउंट का मतलब तो सिंपली नंबर ऑफ मोल्स है। मान लीजिए नाइट्रोजन है, यू हैव 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट? 0.25 मोल। 7 by 28, mass by molar mass you get 1 by 4 or 0.25 moles here. Pressure, temperature, you know, it is temperature is expressed in either Celsius or Kelvin or degree Fahrenheit. Celsius और Kelvin में क्या रिलेशन होता है सर? 25 डिग्री सेल्सियस इन Kelvin मीन्स ये तो आपको मालूम होगा, टेम्परेचर इन Kelvin इज इक्वल टू 273 plus 25. गुड, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 एग्जैक्ट है, बट जनरली हम 273 ऐड करते हैं, so it is basically 298 Kelvin. What is relation between Celsius and Fahrenheit? बताइए। सर 9/5 C plus 32 सर। आप 37 डिग्री ले लीजिए, बॉडी टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, convert into Fahrenheit. जी कितना बन रहा है? चार्ट में भेजें। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा इस फार्मूला से, चाहे आप कंफर्म कर लीजिएगा, दिस विल बी द रिलेशनशिप। यस सर या। और सर प्रेशर जो है, यू नो देयर आर टू डिवाइसेस, वन इज बैरोमीटर, another is manometer. Can anyone answer what is difference between barometer and manometer? So barometer air pressure के लिए होता है, manometer water pressure के लिए. वाटर प्रेशर के लिए या गैस प्रेशर के लिए? हाँ सर, सॉरी, गैस.
To measure the gas pressure, we use manometer. This is for atmospheric pressure. I will discuss these together. Here, actually, manometer are of two types. One is open end manometer. And another is closed end manometer. So basically बैरोमीटर का कंस्ट्रक्शन तो सिंपल है सर. आपने ये मरकरी लिया यहाँ पर और इसमें एक ये ट्यूब फिल्ड विद मरकरी इज प्लेस्ड ओवर इट. तो जितना ये डिस्प्लेस होता है यहाँ पे वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देता है. हमारा जो मकसद है सर गैस प्रेशर को मेजर करना. अब इसमें दो तरह के मैनोमीटर हैं, ओपन एंड एंड क्लोज एंड. ओपन एंड मैनोमीटर में क्या होता है कि आपके पास ये एक बल्ब है गैस. यहाँ मरकरी फील्ड होती है बेसिकली. तो इनिशियली तो मरकरी का लेवल सेम होगा और ये जो एक आर्म छोटी है एक आर्म बड़ी है, दिस इज ओपन एंड. यहाँ पर क्लोज नहीं है. और क्लोज एंड में क्या होता है आपके पास, ये आप गैस के सोर्स से कनेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे सर आपका जो लॉन्गर आर्म है वो एंड क्लोज होता है. तो अगेन मरकरी इज देयर यहाँ पर. देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन बनेंगी जब आपने गैस बल्ब से कनेक्ट किया. एक सिचुएशन तो ये बनेगी सर आपका लेवल ओपन एंड की साइड बढ़ गया और ये आपका राइज है मरकरी का, एच मान लीजिए. कैन एनीवन आंसर यहाँ पर गैस का प्रेशर इस साइड पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना. गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा या कम होगा यहाँ पर? बताइए. गैस ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है या कम प्रेशर कम एक्सर्ट कर रही है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर? यहाँ पर मरकरी का लेवल राइज हुआ तो इसका मतलब गैस ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है या कम प्रेशर एक्सर्ट कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से? ज्यादा. ज्यादा कर रही है. जब लेवल सेम है इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ जब लेवल लॉन्गर आर्म में बढ़ गया इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो ये हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है उसका प्रेशर आप ले लेंगे H इंटू डेंसिटी इंटू जी. H जो है हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है
डी डेंसिटी है, जी यू नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 जो आप पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पढ़ा हुआ है ना आपने वो वैल्यू। यस सर। इस केस में जब ये लेफ्ट आर्म में आपका राइज कर गया, इसका मतलब नाउ प्रेशर ऑफ गैस इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर हम ये जो हाइट बना आपके पास h, इस हाइट का प्रेशर माइनस कर देंगे, h इंटू रो इंटू जी या h इंटू डेंसिटी इंटू जी। लेकिन क्लोज एंड के केस में जो भी राइज करेगा लेवल, जिस साइड भी राइज करेगा, यहाँ पर क्योंकि ये वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है आपने, तो प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा है वो गैस का ही प्रेशर आएगा। इस केस में प्रेशर ऑफ गैस इज सिंपली h इंटू रो इंटू जी, चाहे तो आप d लिख लीजिए या h रो इंटू जी, एक ही बात है। डेंसिटी के लिए d लिखा या रो सिंबल होता है, वैसे दोनों में से कोई भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर आपका ओपन एंड है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। गॉट इट? दोबारा समझाऊं? Yes, sir. देखो ओपन एंड में तो आपके पास एक एंड पे जो लॉन्गर आर्म है ओपन है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। अगर लेवल मरकरी का दोनों साइड पे सेम है, तो इसका मतलब जो प्रेशर यहाँ से गैस एग्जर्ट कर रहा है और इस एंड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. बट अगर गैस प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट कर रहा है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये मरकरी लेवल किस साइड लाइज होगा, लेफ्ट या राइट? So left. इधर से अगर प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट हो रहा है, Right. राइट में राइज हो जाएगा ना। तो Yes, sir. प्रेशर ऑफ गैस विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जितना लेवल राइज हुआ मरकरी का, उसका प्रेशर हम h इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये फार्मूला होता है प्रेशर का। अब अगर क्लोज एंड लेता हूं, यही केस अगर उल्टा हो कि सर यहाँ से जो प्रेशर है वो ज्यादा है, ये कम है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में प्रेशर मरकरी का लेवल ज्यादा होगा और यहाँ पर जो प्रेशर ऑफ गैस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा बाय एच रो जी, तो यहाँ माइनस कर दी। लेकिन जो क्लोज एंड मैनोमीटर है, यहाँ पर एंड क्लोज्ड है और वैक्यूम है, यहाँ पर मतलब कोई एयर नहीं है, मतलब एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ भी नहीं है, जिनिल है यहाँ पर। तो इसलिए जो भी लेवल राइज होगा वो किसका प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ Yes. गैस। अब यूनिट्स ऑफ प्रेशर में देखिएगा, एक तो आप 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है 760 mm ऑफ मर्करी, और वी राइट इट एज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। इट इज आल्सो रिटन एज 760 टोर। टोरिसेली ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये यूनिट दिया टोर। इसके अलावा बार हम यूज करते हैं, 1 बार इज इक्वल टू 1 atmosphere is 1.013 bar and 1 bar is 0.987 atmosphere. सर जी, सर एच डी जी क्या है उसमें, जो H ओपन जो एंड है में? हाइट ऑफ मर्करी है, जितना लेवल चेंज हुआ। D क्या बताया मैंने, डेंसिटी ऑफ मर्करी। अगर नहीं दिया हो तो सर इसका वैल्यू 13.6 ग्राम पर सीसी होता है। और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो मालूम होगा आपको। यस।
1 bar is equal to 10 raised to power 5 Pascal. Pascal you know ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. ये इंटर कन्वर्जन आपको मालूम होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चंस में यूज होती है. एसआई में यूनिट है, गैस लाज में हम यूज करेंगे आर का वैल्यू, वो यूनिट्स पे डिपेंड करता है, तो आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए. और प्रीवियस पेज पे एक और आपका बचा सर, वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ गैस से क्या मतलब हुआ सर? डू गैसेज हैव फिक्स वॉल्यूम? No, sir. सर वो अगर देखिए, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे होंगे तभी सेम वॉल्यूम होगी. वो सर मोल्स सेम होंगे तभी होता है वॉल्यूम सेम. अच्छा हाँ यस सर. मेरा मकसद क्या है सर, आपने एक गैस सिलेंडर लिया, या सपोज आपने एक बैलून फिल्ड विद गैस लिया. इफ आई पंचर दिस बैलून, आपने उसको पंचर कर दिया, नीडल से पंचर किया, जो गैस है दैट विल ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम. जो भी रूम का स्पेस है पूरे गैस रूम में स्पेस में स्प्रेड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. अगर आपने 500 ml का फ्लास्क लिया, उसमें गैस एनक्लोज है, और मैं उसको 2 लीटर वेसल में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम विल नाउ बी 2 लीटर. वो gases do not have a fixed volume, they occupy or they take the volume of the container. जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे उसी का वॉल्यूम गैसेस ऑक्यूपाई करते हैं. तो ये आपका वॉल्यूम है. 1 लीटर इज 1 क्यूबिक डेसीमीटर. और क्यूबिक मीटर में कितना हो जाएगा सर? 10⁻³ क्यूबिक मीटर. Can you state some of the characteristics of gases? सर दे हैव नो शेप. चलिए सर, नो फिक्स शेप और वॉल्यूम. सर दे आर कलरलेस. ऑल गैसेस आर कलरलेस. अच्छा नहीं सर नहीं सॉरी. NO2 ब्राउन है, ब्रोमीन यस सर वेपर्स देर है, आर पॉइंट. ये भी ब्राउन होते हैं. देन यू हैव आयोडीन वेपर्स, वायलेट इन कलर. कलरलेस तो कोई जरूरी नहीं है. दे हैव नो सर डेफिनेट शेप और वॉल्यूम. इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स आर. फोर्स, सर इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड. intermolecular space is large. मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो लार्ज होता है, काफी बड़ा होता है. तीसरी बात, आपका जो पॉइंट है सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल. वन मोर थिंग हियर, highly compressible. Gases can be compressed easily. Yes or no?
Yes, sir. And what else can I say? Diffuse faster. They diffuse most easily. सॉलिड लिक्विड और गैस में सबसे इजीली डिफ्यूजन किसका होता है? गैसेस के केस में. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द गैस लॉज. पिछले स्लाइड दिखा सकते हो आप? श्योर सर. सर हो गया. देखिए यहाँ पर देयर आर वेरियस गैस लॉज व्हिच वी शैल डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉयल्स लॉ. At constant temperature, volume of a given amount of gas is inversely proportional to pressure. V is proportional to 1 by P at constant temperature and amount. Amount also has to be constant here, which is N, number of moles. I can also say PV is equal to constant. जैसे हमने कहा P proportional to 1 by V. So can I say P K 1 by V? K is constant here. So product of pressure and volume will be constant. Or I can say P1 V1 is equal to P2 V2. मतलब आपके पास ये इनिशियल स्टेट है. विजय, जस्ट 1 minute. Okay, sir. This is final state. So P1 V1 is equal to P2 V2. This is another important relation which we use for numericals, provided temperature and amount are constant. ये मुझे कांस्टेंट रखना है, तभी ये रिलेशन वैलिड होगा. अब एक चीज यहाँ पर देखिए सर, पहले प्रीवियस स्लाइड पे शायद रह गया था कुछ. पार्ट सर इसमें n क्या है? अमाउंट आपको अभी पीछे बताया था ना. यस सर, यस. अमाउंट इज नंबर ऑफ मोल्स. सर और k क्या है जो नेक्स्ट स्लाइड में? ये कांस्टेंट मान लो ना, जब प्रोपोर्शनल है तो कोई ओ, कांस्टेंट ऑफ ओके प्रोपोर्शनैलिटी सर. लोगे आप. ओके और सर. पीवी क्या हो जाएगा कांस्टेंट की. अब आप बताइए मुझे कि अगर मैं यहाँ पर प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम प्लॉट बनाता हूँ,
at constant temperature. This is called as isotherm. So what kind of graph will you have? Like this. This will be graph for pressure versus volume. अगर मैं यही प्लॉट PV वर्सेस P या V बनाता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहना है. ये स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दिस विल रिमेन कांस्टेंट. और अगर मैं यही प्लॉट आपको देता हूँ बच्चे PV वर्सेस P वर्सेस 1/V, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर बनेगा. तो P is directly proportional to 1/V या V proportional to 1/P. बात एक ही है. यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन देगा मुझे. जैसे जैसे 1/V का वैल्यू बढ़ेगा प्रेशर का वैल्यू भी प्रोपोर्शनल है, तो ये वैल्यू भी इंक्रीज. डन सर? Yes, sir. अच्छा एक सर चीज यहाँ ग्राफ पर क्या बोलिए. सर ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉयल्स लॉ को ही है, आइसोथर्म्स है. कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है. प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम प्लॉट किया तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा. यहाँ पर पीवी का ग्राफ प्रेशर या वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे लेंगे तो कांस्टेंट ही रहना है. और अगर प्रेशर और 1/वॉल्यूम के अगेंस्ट 1/V के अगेंस्ट प्लॉट करूंगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा. जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगा प्रेशर का वैल्यू भी इंक्रीज होगा. अच्छा एक चीज मुझे बताइए, माउंटेन्स वगैरह पे या कभी आपने हिल स्टेशन पे विजिट किया हो, डू यू हैव डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग समटाइम्स? यस सर. Yes, sir. कैन यू थिंक व्हाई इट इज सो? Why mountaineers Pressure, they carry oxygen cylinder with them? because of the difference in pressure. Why mountaineers they carry oxygen cylinders with them? As you go to higher altitude, pressure decreases or increases? Decreases. Atmospheric pressure decreases, so volume will increase. Pressure decrease होगा तो volume increase होगा. So density will increase or decrease. Density क्या होता है? Volume increase होगा तो density Decrease. एयर इज लेस डेंसर तो ऑक्सीजन का डेंसिटी भी कम होगा और ऑक्सीजन इज लेस अवेलेबल, एंड फॉर दिस रीजन दे हैव डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. इसी रीजन से जो माउंटेनियर्स हैं दे हैव डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद. बट दिस इज नॉट द केस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन ए प्लेन. ऐसा क्यों होता है सर? जब आप एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तब तो ऐसा कुछ नहीं होता सर.
Am I right or एरोप्लेन में wrong? वो, यस सर। What is the reason for this? सर वो शायद एरोप्लेन में सेम प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं जो नॉर्मली होता है। वहां पर सर प्रेशर मेंटेन रहता है, और प्रेशर मेंटेन होने से जो आपको है डिफिकल्टी नहीं होती ऑक्सीजन ब्रीथिंग में। बट स्टिल अगर किसी को लगे सर ऐसा, तो ऑक्सीजन मास्क आर अवेलेबल, और उस केस में आप ऑक्सीजन मास्क यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव। और एक चीज सर आपको और मैं समझा दूं कि सर इट इज डिफिकल्ट टू कुक vegetables at higher altitude. माउंटेन्स वगैरह पे वेजिटेबल्स को पकाना हो या वेजिटेबल्स कुक करना हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। रेदर प्रेशर कुक करके ही वेजिटेबल्स वगैरह बनाते हैं। विदाउट यूज ऑफ प्रेशर कुकर इट्स वेरी डिफिकल्ट। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? Why it takes less time to cook vegetables in a pressure cooker? Can anyone answer what is boiling point? The minimum temperature at which a substance boils. Temperature at which vapor pressure equals to atmospheric pressure. ये आप आगे पढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। लिक्विड बेसिकली इक्विलिब्रियम में जब वेपर्स के साथ होता है, प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा है उसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब होता क्या है बेसिकली, आपके पास यहाँ पर सर वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब मान लो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जहां पर ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, ये बॉइलिंग पॉइंट हुआ लिक्विड। अब अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर देता हूँ, अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आया सर? कम हो गया या ज्यादा हो गया? बताइए। रेड वाला बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है पहले से या कम है? टीबी बड़ा है या टीबी डैश बड़ा है? TB। टीबी बड़ा है ना। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे आप हाइट पे जाते हैं प्रेशर डिक्रीज हो गया, दिस इज लेस, तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम हो गया। अब जो वाटर है नॉर्मली ग्राउंड लेवल पे या प्लेन्स में वाटर बॉईल कर रहा है 100 डिग्री पे, तो जब आप हाइट पे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ना यार, प्रेशर कम हो गया ना हाइट पे। यस सर। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? हाँ बॉइलिंग पॉइंट कम होने से क्या होगा आपका, कुकिंग टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, boiling point will decrease and it's difficult to cook vegetable. तो इसलिए वहां पर सब प्रेशर कुक करते हैं। और प्रेशर कुकर में क्या होता है, लिड जो है जो हम कवर कर रहे हैं उससे प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि लिड भी अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। एंड फॉर दैट रीजन बॉइलिंग पॉइंट विल बी रेज्ड। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से जो कुकिंग टाइम है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जल्दी बन जाएगी वेजिटेबल। होप सर समझ आया बॉयल्स लॉ। यस ज्यादातर यही पूछा जाता है सर कि माउंटेनियर्स क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज करते हैं। तो रीजन इज क्लियर कि जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं प्रेशर आपका कम हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से क्या होगा कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी डिक्रीज हुई, तो एयर इज लेस डेंसर एट हायर एल्टीट्यूड। और लेस डेंसिटी होने से क्या होगा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी। एंड दैट्स द रीजन आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी, सॉरी, डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग करने में। बाकी सर चार्ल्स लॉ है इससे नेक्स्ट, वो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन है, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट तो कर दूं मैं बट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चार्ल्स लॉ, देन प्रेशर लॉ, देन ग्राम्स लॉ, देन डाल्टन्स लॉ, ये सब फिर कल क्लास लेंगे, कल उसमें कराते हैं। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। चलिए कल मिलते हैं सर। थैंक यू तो स्लाइड्स भेज देंगे। जी। थैंक यू सर। sir. Thank you, sir. थैंक यू।